In the previous class, we have studied about sensible heat as well as about the latent heat. Okay. Actually, in the previous class, we have performed an experiment, and with the help of that experiment, we know that what is sensible heat and what is latent heat. Today, what we will do, we will draw a graph. Okay. We will draw a graph between temperature and टाइम. ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वहां से हम लोग पढ़ेंगे कि देखें कि लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट टाइम और टेम्परेचर ग्राफ पे किस तरह दिखता है. ठीक है, देखो जब भी हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या होता है, दो एक्सिस को कंसीडर करना पड़ता है. एक होता है वर्टिकल एक्सिस and the vertical axis is called the ordinate. Okay, and another is the horizontal axis, and this horizontal axis is called the coordinate, sorry, abscissa. This is the horizontal axis, this is called the abscissa, and this is denoted by x. Okay, and this is the vertical axis, this is called the coordinate and denoted by y. Is this okay? The point where the x and y axis intersect is called the origin. Origin is denoted by 0, 0. Okay? Anyone have any doubt? No. No. So you have to draw the graph between the temperature and the time. For this graph, temperature is on the y-axis. Is it okay? Yes, sir. And time is on the x-axis. No, temperature is on the y-axis and time is on the x-axis. It is clear? So yes, this axis denote the time axis and this axis denote the temperature axis. It is clear? Now we mark the temperature in degrees Celsius. Temperature is in degrees Celsius. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and here is 100. Okay. Now on the another axis we will denote the time, and time is in minutes. Okay, that is 1 minute, 2 minutes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. It is clear? Yes, sir. It is clear? Okay. Yes, now tell me, when the temperature is 0 degree, okay, from 0 degree ice to 0 degree Celsius water, tell me, is the temperature rise? No. It will rise or not? No, sir. No, sir. No, sir. It will not. It will not rise. Okay? It will remains constant. Is this okay? For 0 degree means time passes but the temperature will not increase. For 0 degree Celsius ice to 0 degree Celsius water, and this is called which type of heat? Latent heat. Latent heat. और latent heat में भी कौन सा latent heat है? Latent heat of fusion. Latent heat of fusion. Great. Okay. क्या ये latent heat of fusion? Fusion. ओके, अब देखो, अब क्या होगा, मानो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 से जब 4 जाएगा यहाँ पे क्या होगा,
टेम्परेचर इंक्रीज करेगा विद द टाइम और नॉट? यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री वाटर है, ठीक है। 0 डिग्री वाटर से अब हम हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? It will increase. इट विल इंक्रीज। और ये कब तक इंक्रीज करेगा? Till it reaches Latent heat of degree Celsius. vaporization T. 100 कहाँ तक degree करेगा? Celsius. 100 डिग्री सेल्सियस तक। और 100 डिग्री सेल्सियस ये क्या है, वाटर है या स्टीम है? steam. Change into water to बेटा steam. यहाँ पे वाटर है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम हो जाएगा और इसके बाद हीट करेंगे तो फिर क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 0 डिग्री था ना, तो 0 डिग्री पे कैसा होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। मतलब ये क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो ग्राफ होगा नीचे की ओर होगा और 0 डिग्री पे कैसा होगा ग्राफ, कांस्टेंट होगा, मतलब ऐसा ग्राफ होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, है कि नहीं। और मानो माइनस में क्या होगा, इस तरह से इंक्रीज करेगा ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ होगा ना, Yes, sir. Yes, sir. होगा। अब देखो यहाँ पे हाँ। क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मानो -10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करके कहाँ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और ये 0 डिग्री सेल्सियस में क्या है, आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस है। और यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस Water. वाटर। Water. तो इसी चीज को हम लोग क्या बोले थे, कौन सा हीट है यहाँ पे, Latent जो heat. heat Latent supply हो heat रहा of fusion. यस, latent Fusion. heat of fusion, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब यहाँ पे कौन सा हीट है, तो Sensible. यहाँ पे कौन सा हीट है, -10 डिग्री सेल्सियस, सेंसिबल QS। फिर यहाँ पे कौन सा हीट है, विच टाइप ऑफ हीट आर दे, Sensible. सेंसिबल हीट। यहाँ पे कौन सा हीट है, Latent. Latent heat of vaporization. वेपोराइजेशन, latent heat of vaporization. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Anyone have any doubt? No, sir. तो जहाँ पे where there is latent heat, there is a graph that is parallel to the horizontal axis. Is this clear or not? Clear, sir. Okay. I have doubt. Yes, you have doubt. सर हम लोग पर अभी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हम लोग डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा लेटेंट हीट का डेफिनेशन ऐसे लिखोगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड at 100 degrees Celsius to steam at 100 degrees Celsius. Is this okay? ओके सर, ओके सर। Any doubt? नो सर। No. तो ग्राफ पे हम लोग कैसे शो करेंगे ये भी देख लिया आज, हाउ टू शो द लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट ऑन द ग्राफ. Is this okay? What you observe here, that for sensible heat the graph will increase with increase in time. Is this right or not? Yes, sir. Okay. Right, sir. For sensible heat the graph will increase with time. That means the temperature will increase with time for the sensible heat, but for the latent heat the graph is constant or parallel to the time axis. That means time will increase but the temperature remains constant, and this is for the latent heat. Is this okay? Yes, sir. Okay. Shall I erase the screen? यस सर। Okay. Those who does not attend the class tomorrow or previous class, okay, they can
विजिट टू ए यूट्यूब चैनल, उस चैनल का नाम क्या है? दामोदर एकेडमी। Is this clear? Is this clear? देखो अब हम लोग लेटेंट हीट के बारे में जान गए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रीग्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। रीग्लेशन क्या होता है? रीग्लेशन, ठीक है। तो रीग्लेशन को भी हम लोग क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रीग्लेशन with the help of an experiment. Okay, what you have to do, you have to take a ice slab. Okay, what you have to do, you have to take a ice slab. Is this okay? Yes, sir. Suppose this is the ice slab. Okay, this is the ice slab, and इसके बाद क्या करो? एक वायर लो, ठीक है, एक वायर लो इस टाइप का, और इस वायर के दोनों साइड सपोज करो 10 kg वेट को होल्ड करो, और इधर भी क्या करो? 10 kg वेट को होल्ड करो। इट इज क्लियर? अब इस वायर को क्या करो? इसके ऊपर में लाके रख दो इस तरह कि एक 10 kg वेट इधर से लटक जाए और एक 10 kg वेट इधर से लटक जाए। इट इज क्लियर? यस सर। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये मेरा मोबाइल है ना, ये मान लो आइस स्लैब है, ठीक है। हम क्या करेंगे? एक वायर लेंगे और इस तरह इसके ऊपर रख देंगे, और देखो इस वायर का दो एंडिंग है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। इधर से भी क्या करो? 10 kg वेट होल्ड करो, और इधर से भी क्या करो? 10 kg वेट होल्ड करो। समझ में आया? ओके। अब देखो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट दिस वायर विल पेनिट्रेट द आइस, और ये वायर क्या होगा? ये नीचे आके गिर जाएगा, लेकिन विदाउट इस आइस को ब्रेक किए हुए। नहीं समझ में आया? ये जो इसके ऊपर है ना वेट, ये वायर देख रहे हो? ये जो आइस स्लैब के ऊपर जो वायर है, ये वायर क्या करेगा? इस आइस क्यूब को बिना ब्रेक करे हुए, इसको पूरे कट करते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है? Yes, sir. नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा सर। देखो जैसे मान लो ये मेरा वायर है, ठीक है। अब इधर से क्या लगेगा? दोनों साइड से वेट लगेगा। अब ये जो वायर देख रहे हो मोबाइल के ऊपर में है ना, ये क्या करे? बिना इस मोबाइल को ब्रेक किए हुए यहां से बाहर निकल जाए, इसके इस साइड से नीचे आ जाए, ठीक है। ये पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल? मोबाइल के केस में पॉसिबल नहीं है, बट इन द केस ऑफ दिस ice slab, the wire will penetrate the ice slab and it will come back. Is it okay? Yes. Okay. Okay. Yeah. अब ऐसा क्यों हुआ? Can anyone give the answer? 10 kg के वेट से सर वेट 10 के kg प्रेशर से आइस मेल्ट होने Yes. लगा। Good. Raj is giving the right answer. क्या हुआ? देखो कभी आप क्या करना, एक धागा लेके अपने हाथ पे ऐसे खींचना इस तरह से, जैसे ये है, इसको नीचे खींचो। आप यहाँ पे प्रेशर महसूस कर रहे हो? Yes, sir. इस धागा को ऐसे करके खींचो, नीचे की ओर खींचो। देखो मैं क्या करूँ, यहाँ का जो स्किन है वो क्या हो रहा है? दब गया नीचे की ओर की नहीं? हाँ इसका मतलब क्या है? जब ये वेट लग रहा है तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये वायर क्या करेगा? इस पोर्शन पे, आइस के इस पोर्शन पे
क्या करेगा? create प्रेशर क्रिएट करेगा. दिस विल क्रिएट द प्रेशर. और जब बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर व्हाट हैपन, द Temperature आइस विल increase. मेल्ट. द आइस विल Yes, मेल्ट. sir. Okay, because pressure is directly proportional to temperature. Is it okay? Yes, sir. Means Yes, if sir. we increase the pressure, then the temperature will increase, and if we decrease the pressure, then the temperature will decrease. Is it okay? So because of the pressure there is increase in the temperature, and because of the increase in temperature what happened, this part will melt and the ice will slowly go down. It is okay? And Yes, after the ice goes down, what happened, the upper portion, the pressure is released, and when the pressure is released, that means it will Temperature falls and it also stick. temperature also फिर से क्या and होगा it वो? will again become freeze. फ्रीज. फिर क्या होगा वो? फ्रीज कर जाएगा. इट इज क्लियर? तो रीग्लेशन होता क्या है? Regulation is the process in which ice converted into liquid due to applied pressure and then reconvert to ice when the pressure is released. Is it clear? What is regulation? Regulation is a process. Bolo, is a process Is a process in which liquid gets converted into liquid gets converted into liquid get converted to sorry. Regulation is the pressure in which ice. Hello, can you hear me? yes, sir. yes sir. Regulation is the pressure. Regulation is the process in which ice gets converted into liquid due to the applied pressure, and when the pressure is released, okay, the liquid again gets converted into ice. Is this okay? Yes, sir. जब तक Yes, sir. प्रेशर है तब तक क्या हुआ, जो आइस था वो Water लिक्विड में रहेगा. कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया. जब प्रेशर रिलीज हुआ वो वाटर फिर से क्या किया, Ice. क्योंकि टेम्परेचर क्या Ice है, में बन गया. ओवरऑल टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री के क्लोज है और 0 डिग्री से हाँ. कम है. तो 0 डिग्री के क्लोज या 0 डिग्री के कम, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से क्या करेगा, फ्रीज कर जाएगा. तो रेगुलेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच ice gets converted into liquid because of the applied pressure, and when the pressure is released, then this liquid again gets freezed into the ice. Is this clear? Or shall I repeat it again? Clear, sir. Yes, sir. Clear. Okay. Clear sir. Okay. Now shall I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now anomalous behavior of water. Now we will study about the anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water. देखो, what does the word anomalous means? Can anyone tell me? Weird. What does the word anomalous means? कोई हटके What? हटके something Anomalous different. means होता है abnormal behavior. Okay. What does the word anomalous mean? Anomalous means abnormal behavior. Means not the normal behavior. Is it okay? Yes, sir. Okay. Now look at. Now tell me. Suppose this is this is water. Okay. And when we give heat to the water, what happens? It will get converted into a steam. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Means when we supply the heat to water, what happens? Its volume will increase or decrease. Increase. Increase. Okay. जब suppose ये water है, इसका molecule क्या है? The molecules of water is closely packed.
But when we supply heat, what happened? It will scattered. Yes, the intermolecular force of attraction between these water molecules gets break. When the intermolecular force of attraction between these water molecule breaks, then what happens? These particles go far away from each other, and because it will goes far away from each other, because of this, the volume will increase. Is this clear? Yes, sir. Okay, normally when we supply heat to any substance or any liquid, their volume will increase. And when we, जब हम लोग क्या करेंगे, हीट को अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे उसमें टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे. When we decrease the temperature, what happen? The volume will also decrease. Okay, because PV is equal to mRT. Okay, means pressure is directly proportional to temperature, volume is directly proportional to temperature. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, देखो यहाँ पे क्या होता है, when the volume is directly proportional to temperature, this is the equation for the perfect gas or the ideal gas, for example air. Is this okay? This equation hold good for the air, where P is the pressure, V is the volume, M is the mass, R is the constant, and T is the temperature. Means pressure is directly proportional to temperature. Similarly, volume is also directly proportional to temperature. Means when we increase the temperature, the volume will increase. When we decrease the temperature, the volume will decrease. Okay, this hold good for air or for the perfect gas. Is this okay? This is the normal situation which we observe generally. But what happens in the case of water or in the case of ice? Okay, suppose a water is at 0 degrees Celsius, means it is in the form of ice, okay, or 0 degree water. When we supply heats, that means the temperature will increase or not? The temperature will increase or not? When we supply heat, Yes. Not, sir. yes beta, when we supply the heat, then the temperature is increase. ठीक है, आप क्या Yes, करते हो, sir. जैसे आप वाटर को बॉयल करते हो अपने गैस सिलेंडर के ऊपर, गैस चूल्हा के ऊपर, आप क्या करते हो, उसमें से उसके बर्नर से क्या करते हो, हीट सप्लाई करते हो. उस हीट को गेन करके क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है. इज दिस ओके? Yes, sir. When you supply heat, the temperature will increase. Okay, तो जब 0 डिग्री आइस है या 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, हम what we will do, we will supply the heats, means the temperature will increase. But what you observe, that the volume will decrease. Here, look at this graph. On the vertical axis, there is volume. Is this okay? And on the horizontal axis, temperature is denoted. Is this clear? Yes, sir. इसके वर्टिकल Yes, एक्सिस पे sir. क्या है, वाटर है, और इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टेम्परेचर है. इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, इस तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो, जब हम y एक्सिस पे नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? Decrease. डिक्रीज कर Decrease हो रहा रहा है. है, sir. और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे राइट की ओर मूव कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase होगा, sir. टेम्परेचर इंक्रीज होगा. दैट मीन्स जब हम लोग इस ग्राफ पे मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, दिख रहा है कर्व, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. But when you reach at 4 degrees Celsius, what you observe, that after 4 degrees Celsius, when we supply the heats, when we increase the temperature, then volume will increase
अब ये क्या कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ग्राफ, और ऊपर जाने का मतलब क्या, Yes, वॉल्यूम sir. इंक्रीज या डिक्रीज, increase, Increase. इंक्रीज। तो आफ्टर देखो यहाँ पे क्या 4 डिग्री सेल्सियस है ना, yes sir, after 4 degrees Celsius, what you observe that with increase in temperature, the volume will also increase. Is this okay? Yes, sir. yes sir, Means Yes, sir. before 4 degrees Celsius, what happened? If we decrease the temperature, the volume will decrease. The temperature will increase. But after 4 degrees Celsius, volume will increase, but the temperature will also increase. Is this clear? yes sir, Because of this behavior, this is called the anomalous behavior of the water. Is this clear? yes sir, Yes, sir. तो देखो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस से पहले क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज करो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था, बट आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। ये क्या, ये तो जनरल सिचुएशन है, ये क्या है, जनरल anomalous से behavior, एनालोमस बिहेवियर है, इसी को हम लोग बोलते हैं एनालोमस बिहेवियर ऑफ वाटर। इज इट ओके? नाउ Yes, sir. can anyone Yes, tell sir. me why this will take place? ऐसा क्यों होता है वाटर के केस में? सर वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं क्यों जाते तो हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। क्यों जाते हैं? तो ये बताओ, जब हम लोग टेम्परेचर देंगे, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है और पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए ना। फिर इस पोर्शन में वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? मेरी बात समझ रहे हो ना? What I said, for this graph, look at this graph. What happens? Means 0 degree Celsius water to 4 degree Celsius water. What we observe, that we increase the temperature, but the volume will decrease. Okay? And you told me that when we supply heat, then what happened? The particles moves far apart from one another. When the particle will move far apart, then what happen? The volume will increase. But for this case, we see the real situation is different from this situation. In the real situation, what happens? With increase in temperature, the volume will decrease. नॉर्मली क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा, ऐसा क्यों, कोई बताओगे? यस और नो? density of water is maximum, Where? Yes, at 4 degrees Celsius, the density will be maximum because the volume is minimum at 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius, okay, the volume is minimum for the water. And what is density? Density is equal to mass upon volume. Means if this quantity is minimum, then this quantity will be maximum. So we can say that at 4 degrees Celsius, the density of water, that is rho, is maximum. Is this clear? But density, why this will happen? My question is, why the volume is decreasing at 4 degrees Celsius, before 4 degrees Celsius? This is my question. Why the volume is minimum at 4 degrees Celsius for water? This is my question. नहीं समझ में आ रही है बात? डेंसिटी बराबर क्या होता है? What do you mean by density? mass upon volume,
Yes, it is the ratio of mass and volume. Mass upon volume is called density. अब ये बताओ, जब मेरा वॉल्यूम मिनिमम हो जाए, ठीक है, तो ये क्वांटिटी बड़ा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है और डेंसिटी मैक्सिमम होता है। इज दिस क्लियर? बट व्हाई दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं। देखो, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? H2O. H2O, ठीक है, मीन्स OH H. Similarly, large number of water is there. Is it okay? Yes. ऐसा कुछ होगा ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके वाटर बनाएंगे, Yes, sir. इस तरह से होंगे बहुत सारे वाटर। अब देखो, हाँ, ये वाटर क्या है? ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये बॉन्ड है कैसा? कोवेलेंट बॉन्ड है। केमिस्ट्री में पढ़े हो? हाँ सर। हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है? फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बनता है और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दिस क्लियर? देखो, दो मॉलिक्यूल के वाटर के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? Hydrogen bond. Hydrogen bond. तो यहां पर भी क्या होगा? ये क्या है? वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये क्या? वाटर का एक मॉलिक्यूल। इस दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बीच में कैसा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है? है सर। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये वेरी सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स टेम्परेचर, मींस हीट। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर, टुवर्ड्स हीट। इज इट क्लियर? अब सेंसिटिव Yes, sir. क्या है? जब हम हीट सप्लाई करते हैं तभी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है? ब्रेक कर जाता है। इज इट ओके? जो Yes. कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड के कंपेयर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स द हीट। मींस with the increase in the temperature, what happen? This hydrogen bond breaks. Is this okay? Yes, sir. ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ठीक है। अब एक चीज कभी देखियो, मानो ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और इसके बीच का ये रोप ब्रेक कर जाए, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे। हाँ, यस और नो? नहीं समझ में आया? राज म्यूट कर लो बेटा, आवाज आ रही है। राज प्लीज म्यूट, राज बर्नवाल। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो, ये मानो एक बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये भी इसको इधर खींच रहा है और ये भी इसको इधर खींच रहा है, ठीक है। तो अब देखो, इसके बीच का अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए, दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के क्लोज आएंगे। Yes, sir. आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे। जब दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। Yes, sir.
क्लास में तुम एक दूसरे से दूर बैठो तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब तुम लोग एक साथ क्लोज होके बैठो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा या नहीं डिक्रीज करेगा। डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, हर एक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड दे विल कम क्लोज। Similarly, this will come close to this molecules and this molecule will come close to this molecule. Okay? And because of this, what happens? The volume will decrease. Is this clear? Yes, sir. इसलिए क्या होता है, जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करते कहां तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या होता है, with increase in temperature the volume will decrease. Is this clear? Yes, sir. And at 4 degrees Celsius the volume will be minimum. The volume will minimum where, at 4 degrees Celsius. Is this clear? Is it okay? अब देखो, अब तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया और अपना एक दूसरे को जितना क्लोज आना था उतना क्लोज आ गया। इट इज ओके, Yes, sir. क्योंकि अपने मिनिमम स्टेट को रीच कर गया। अब क्या करो, अगर अब इसमें हीट सप्लाई करो तो अब ये और क्लोज आ सकता है क्या, No. नहीं। तो जब नहीं और क्लोज नहीं आ सकता, जब हम अब हीट सप्लाई करेंगे ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेगा। कब, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस। इज इट ओके? यस सर। तो इसलिए क्या होता है, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आया या नहीं? देखो, जो ये 4 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, मिनिमम। मीन्स ये दो मॉलिक्यूल्स क्या है, इससे अधिक क्लोज नहीं आ सकते हैं। नहीं, जब ये इससे अधिक क्लोज नहीं आ सकते हैं उसके बाद हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, ये एक दूसरे से दूर ही तो जाएंगे, और जब दूर जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसलिए आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल इंक्रीज। इज दिस क्लियर? And we all know that density is nothing but mass upon volume. That means density is inversely proportional to volume. That means when the volume is minimum, at that time the density will be maximum. Okay? Now tell me, at what temperature the volume of the water will be minimum? At what temperature the volume of water will be minimum? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 degree Celsius. So at what temperature the density will be maximum? At 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius. Anyone have any doubt in this graph? Anyone have any doubt in this graph? Yes or no? No. Shall I erase this? Okay. Now, what we study? That suppose this is 0 degree Celsius water, and we will increase the temperature 4 degrees Celsius. Okay, and after 4 degrees Celsius, let we increase the temperature to 100 degrees Celsius. Okay, in this interval what happens, the temperature will increase and the volume will decrease. Is this clear? For Yes, this sir. interval what happens, the temperature will increase and the volume will increase. Okay, now reverse the situation. What happened, the temperature will decrease or increase when you move toward the left. The temperature will decrease or increase? Decrease. Decrease. Yes, the temperature will decrease. And tell me, the volume will increase or decrease? Look at the graph. Increase. The volume will increase. Okay, the volume will increase. And for this, when we move from 100 degrees Celsius to 4 degrees Celsius, the temperature will increase or decrease?
Temperature will decrease. Decrease. The temperature will decrease. Now tell me, volume will increase or decrease? Decrease. Yes. When we move toward the left in this direction, the volume will also decrease. Look at C here. Yes, sir. Okay, volume will also decrease. Is this clear? This is called to be the anomalous behavior of the water. Okay. Make this on your copy. This is called the anomalous behavior of water. Okay. समझ में आया? Yes, sir. Shall I erase the screen? अब एक चीज जानते हो, जिसको हम लोग एनोलॉमस बिहेवियर बोलते हैं, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एबनॉर्मल एनोलॉमस बिहेवियर व्हाट हैपन इन द आर्कटिक जोन और अंटार्कटिक जोन, क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। पोलर जोन में जहां पे क्या हो, टेम्परेचर बहुत कम हो, वहां पे क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ क्यों होता है, जो मछली होते हैं वहां पे जिंदा क्यों रहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एनोलॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर। इज दिस ओके? Is this okay? Yes, sir. Sir. Now we will perform an experiment. Okay? किसी को कोई डाउट है? अंकित गुप्ता, करण, किसी को कोई डाउट है? बेटा बोलो अगर डाउट है तो, ठीक है। कुछ दिख रहा है? Yes, sir. देखो यहाँ पे हम लोग इस एनालॉमस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक एपरेटस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होप्स एपरेटस। क्या बोलते हैं उसको? Hopes apparatus. होप्स एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो होप्स एपरेटस में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, ये देख रहे हो, Yes, तो देख sir. रहे हो, ये क्या Yes. है, हाँ सर। एक सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है। इज दिस ओके? इस हॉलो सिलेंडर में क्या करो, दो जगह पे, एक यहाँ पे थर्मोमीटर लगाओ और एक यहाँ पे थर्मोमीटर लगाओ, ठीक है। इसको देख रहे हो, इसको बोलते हैं, ये बकेट से घिरा हुआ है, ये जो सिलेंडर है वो किससे घिरा हुआ है, बकेट से, बीच में। इज दिस ओके? Yes, sir. ये जो बकेट है ना, ये जो देख रहे हो, ये क्या है, ये एक बकेट है जो क्या है, सिलेंडर के चारों ओर है। इज दिस ओके? अब इस बकेट में क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर। और ये फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है, आइस प्लस साल्ट है। इज दिस ओके? समझ में आया या नहीं आया? अब इसके अंदर क्या करो, वाटर रख दो, ठीक है। अब देखो, जब शुरू में क्या करना, टेम्परेचर को मेजर करना, ठीक है। तो क्या हो, तुम ऑब्जर्व करोगे, जो नीचे वाला वाटर है ना, ये वाला जो इसका जो रीडिंग है, ये सडनली फॉल कर रहा है। क्या ऑब्जर्व करोगे, इसको सडनली फॉल करता फॉर सम टाइम। ये जो देख रहे हो, ये कॉन्टिन्यूअस फॉल करेगा, कॉन्टिन्यूअस फॉल करेगा। बट ये जो टेम्परेचर T1 देख रहे हो, ये क्या करेगा, सडनली फॉल करेगा और आफ्टर सम टाइम ये ग्राफ इंक्रीज करेगा। अब इस दोनों टेम्परेचर के रीडिंग को एक ग्राफ पे प्लॉट करो, ठीक है। सपोज करो ये मेरा एक ग्राफ है, यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे टाइम है। तो सबसे पहले क्या करना, इसके रीडिंग को प्लॉट करना, ठीक है। आप क्या देखोगे कि ये देखो, ये फ्रीजिंग मिक्सचर है, ये क्या करेगा, इसके अंदर के वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इट इज क्लियर? यस और नो? Yes, sir. फ्रीजिंग मिक्सचर का काम क्या है, आइस प्लस साल्ट है फ्रीजिंग मिक्सचर, इसका काम क्या है,
टेम्परेचर को डिक्रीज करना, इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करना काम है। तो जो देखो सबसे पहले हम लोग इसके टेम्परेचर को रीड करना, क्या देखोगे इसका जो टेम्परेचर है ना वो इस तरह से डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, ठीक है, इज दिस ओके। और जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या तुम ऑब्जर्व करोगे कि अभी भी डिक्रीज कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देखना एक सडन थोड़ा इंक्रीमेंट होगा और फिर से इस तरह से डिक्रीज करेगा ग्राफ। इज दिस ओके, समझ में आया या नहीं? No, sir. जब इसके रीडिंग को करोगे ना, ये सब एक्चुअली स्कूल में लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, वहां तुम ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैसा कोई साधन नहीं है, मैं एक्सपेरिमेंट करा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ जब इसके टेम्परेचर को रीड करोगे तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है विथ टाइम, क्योंकि क्या है, ये क्या है, कूलेंट है, ये बिकॉज ऑफ दिस कूलेंट क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो टाइम के साथ ये ग्राफ इस तरह से डिक्रीज कर रहा है, फिर जब 4 डिग्री सेल्सियस को रीच करेगा तो क्या होगा, थोड़ा ऐसे इंक्रीज करेगा और ग्राफ का जो कर्व है इस तरह से चेंज हो जाएगा। इज दिस ओके, समझ में आया? यस और नो, यस और नो बेटा, हाँ हाँ या ना तो बोलो। Can you hear me? मैं क्या बोल रहा हूं, जब देखो ये क्या है, फ्रीजिंग मिक्सचर है ना ये, तो जो वाटर इसके कांटेक्ट में होगा, ठीक है, उसका आइस प्लस साल्ट है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसके अंदर का वाटर या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, ये जो है ना 4 डिग्री तक सडन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एकाएक डिक्रीज कर रहा है 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या कर रहा है, थोड़ा धीरे धीरे ग्राफ स्लोली डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। जब इस टेम्परेचर का ड्रॉ करोगे तो क्या देखोगे, इसका जो टेम्परेचर है ये सडन इस तरह से डिक्रीज कर रहा है ऑलवेज, ठीक है, इज इट ओके? यस सर। तो ये क्या है, T2 का ग्राफ है, ये किसका है, T1 का ग्राफ है। तो ऐसा ग्राफ देखने को क्यों मिल रहा, क्योंकि एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, जो वाटर है अपने मिनिमम वॉल्यूम को रीच कर रहा है, ठीक है। अब उसका डेंसिटी का क्या हो जा रहा है, लो हो जा रहा है, लो हो रहा है या बढ़ रहा है, यहाँ पे डेंसिटी इसका हाई हो जा रहा है और वॉल्यूम मिनिमम हो जा रहा है, लो हो जा रहा है। इसी कारण इस एनालोमस बिहेवियर को देखने को मिलता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, देखो ये एक्चुअली आप स्कूल में देखोगे, ठीक है, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, परफॉर्म करोगे तो रियल में समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी एक्वेटिक लाइफ है, आर्टिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल में, वहां पे एक्वेटिक लाइफ कैसे एग्जिस्ट करता है। अब देखो ये मानो वाटर का लेयर है, ठीक है, अब मानो ये एक लेयर है, फिर नीचे एक लेयर है, इज इट ओके, समझ में आया? Yes, sir. अब देखो क्या होता है, मानो बाहर का टेम्परेचर मानो 4 डिग्री सेल्सियस है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, आर्टिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल के जोन में क्या होगा, जो लेक होता है वहां पे टेम्परेचर और डिक्रीज करता है, डिक्रीज क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और फिर क्या होता है, माइनस में चला जाता है। जो ये अपर सरफेस है लेक के वाटर का, ये क्या होगा, इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसका भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जब इसका भी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ये क्या करेगा, Convert into ice. कन्वर्ट इनटू आइस, ठीक है। अब देखो जब ये आइस में कन्वर्ट हो रहा है, कहां से कहां तक, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो मैंने एक
0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। वही 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की ओर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज सर। कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पे यस सर। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन मास अपॉन अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब बताओ वॉल्यूम क्या हो रहा है, जब ये 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में अपर सरफेस का जो अपर वाटर है, जो एटमॉस्फेरिक वाटर के कांटेक्ट में आके इसका क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज किया। कहां से, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है। मतलब क्या वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा या नहीं करेगा, यस और नो। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज। डिक्रीज होगा। बेटा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा ना। यहाँ पे क्या हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। यस सर। कब, जब अपर लेयर ऑफ वाटर का अंटार्कटिक रीजन या आर्कटिक रीजन में क्या हो, 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए, कहां पे, 0 डिग्री सेल्सियस से। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। अब एक चीज बताओ, जिसका डेंसिटी कम होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है या वो सिंक कर जाता है, फ्लोट फ्लोट अभी देखे हो, फ्लोट करेगा। आयरन को देखे हो, आयरन को, आयरन नीडल को, इट विल अगर आप आयरन नीडल को वाटर में फेंकते हो तो वो क्या करता है, सिंक हो वाटर में जाएगा जाके सर। सिंक कर जाता है। लेकिन उतना बड़ा जहाज, वाटर का बना, आप आयरन का बना हुआ उतना बड़ा जहाज कभी सिंक करते हुए देखे हो, नहीं सर। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। लो होती है वाटर अब से। बताओ ये जो आइस है 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ, आइस में कन्वर्ट हुआ, अपर लेयर ऑफ द वाटर। जो ये अपर लेयर ऑफ वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, इसकी डेंसिटी लो है। ये क्या करेगा, वाटर के इस लेयर के, ये जो वाटर का लेयर है इसके ऊपर फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, फ्लोट करेगा। इट इज ओके, सबको समझ में आया या नहीं, समझा सर। ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये ऊपर में ही फ्लोट करते रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये लेयर है, ठीक है, जो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा, क्या इस लेयर को अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक चैम्बर का काम करेगा, एक इंसुलेटिंग चैम्बर का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ के जो वाटर होंगे वो क्या होंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। इट इज क्लियर। ये क्या होंगे, आइस में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसलिए इस लेयर में क्या होंगे, फिश हो, मछली हो, क्या होंगे, सरवाइव कर सकते हैं। सरवाइव कर सकेंगे। इट इज क्लियर। यस अगर सर। मानो ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं अंटार्कटिका में होता, लाइफ नहीं होता। अगर अगर ये वाटर का एब्नॉर्मल एनालोमस बिहेवियर नहीं होता, क्या होता, अपर सरफेस का टेम्परेचर डिक्रीज करता तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती, तो ये वाटर क्या होता, नीचे आ जाता और ये वाला ऊपर ऊपर जाता। फिर इसकी क्या होती, टेम्परेचर डिक्रीज करती तो क्या होता है, इसका डेंसिटी भी इंक्रीज करता, ये फिर नीचे आ जाता। इस तरह क्या होता है, एक ही साथ पूरे के पूरे ये वाटर क्या हो जाते, फ्रीज कर जाते और एक्वेटिक एनिमल सरवाइव नहीं कर पाते। इज दिस क्लियर, समझ में आया। यस सर। यस सर। तो अगर अब आपसे पूछे कोई कि एक्वेटिक एनिमल आर्कटिक रीजन या अंटार्कटिक रीजन के तालाब में, लेक में कैसे सर्वाइव करता है, योर आंसर विल बी दे विल सर्वाइव बिकॉज ऑफ द एनालोमस बिहेवियर ऑफ द वाटर। ओके, व्हाट हैपेंड,
When the atmospheric temperature will decrease, what happens? The upper layer of the lake, their temperature will also decrease. When the temperature will decrease, then what happens? The volume will increase because of the anomalous behavior of the water. Okay, and what happens? This become the solids, and we know that when the volume will decrease, the density will increase. Because of the increase in the density, this layer always float on the upper layer. Means जो upper layer में है वो क्या होगा? हमेशा upper layer में ही रहेगा, वो नीचे नहीं आ पाएगा. इसलिए क्या होते हैं? इस लेयर में aquatic animal survive कर पाते हैं. It is okay or not? किसी को कोई डाउट है? No, Anyone have any doubt? no, sir. You can ask. I am giving you only 3 minutes. If you have any doubt, you can ask. Tell me.